معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے جو بہت ہی شاندار، خطرناک، خوفناک اور پر اسرار ہے۔ تو پھر پیش خدمت ہے میرے دوستو، خوفناک پر اسرار حویلی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، مگر وہ گھوڑا بھی شاید کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے سوار کو اس طرح اڑائے جا رہا تھا جیسے کہ اس ہنگامہ خیز رات کا ایک جز ہو۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اس کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ اندھیرے میں اسے اس طرح فراٹے بھرنے سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ راستہ اس کا جانا پہچانا ہے۔ سوار کی حالت ابتر تھی۔ وہ ایک 10 سال کی بچی تھی جو گھوڑے کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اور لباس خون سے بھرا ہوا تھا، جبکہ گھوڑا بھی زخمی تھا۔ بچی کے ہاتھ سے لگام کب کی چھوٹ چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ کہیں گر گئی ہوگی، ورنہ گھوڑا اس سے ضرور الجھ جاتا۔ سڑک کے دونوں اطراف جنگلات کے سلسلے تھے۔ کبھی کبھی بجلی کی ایک چمک اس کو چونکا دیتی، پھر وہ اسی گھنے اور اندھیرے شور میں کہیں کھو جاتے۔ گھوڑا جنگل میں گھس پڑا تھا۔ جنگل گھنا اور اندھیرا تھا، مگر گھوڑا تو ایسے دوڑ رہا تھا جیسے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ کافی دیر گھوڑا ایک عمارت کے سامنے آخر کار رک گیا۔ وہ عمارت لال اینٹوں اور گول پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے صدر دروازے پر 2 مشعلیں روشن تھیں۔ مشعلوں کے اوپر ایک بڑا سا شیڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ بارش میں بھی چل رہی تھی۔ بارش کا ہیجان اب کم ہو چلا تھا۔ گھوڑا عمارت کے دروازے کے سامنے پوری قوت سے ہنہنایا اور اس کی حلق سے کربناک آوازیں بلند ہوئیں۔ اچانک برآمدے میں قدموں کی آوازیں گونجیں اور بہت سی مشعلیں نظر آئیں، اور پھر بہت سے سیاہ چوگے والے لوگوں نے گھوڑے کو گھیر لیا تھا، جن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ گھوڑے کے حلق سے کربناک آوازیں بلند ہوئی اور پھر اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ بیچارہ دم توڑ چکا تھا۔ سیاہ چوگے والے بچی کی طرف بڑے ہی تھے کہ ایک گونجیلی آواز سن کر وہ چونک پڑے۔ رک جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سیاہ پوشوں نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا اور پھر دوسرے ہی پل وہ الرٹ ہو گئے، کیونکہ آنے والا شاید ان کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ نوارد نے سبز اور نیلا چوگا پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی شکل سے نہایت ہی سلجھا ہوا پروقار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے آس پاس تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ اس نے بچی کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں پوچھا۔ بے ہوش بچی اور مرے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر بھی اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں، لگتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ایک سیاہ چوگے والے نے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نوارد نے کہا۔ اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور دوسرے ہی پل وہ لڑکی کے بازو کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے سے وحشت ظاہر ہونے لگی تھی۔ اناتھا کہاں ہے؟ معلوم نہیں مقدس سردار، دوسرے نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ بولا، لگتا ہے کہ اناتھا کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اناتھا کو کوئی نقصان؟ ناممکن، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، نوارد نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا دوبارہ گویا ہوا۔ تم لوگ وید کو بلاؤ، میں اس بچی کے تندرست ہونے پر اس کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا، نوارد نے اس بچی کو سیاہ چوگوں والوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے تو؟ ایک چوگا والے نے کہا، اور اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اتنا کمزور بھی نہیں کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ ایک بار اس بچی کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے، پھر میں اناتھا کی واپسی کے بارے میں سوچوں گا، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اور پھر وہ چاروں اس بچی کو لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔
नवार्द बाहर ही खड़ा था। बारिश अब कम हो चली थी। अचानक वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, तुम्हारा हसूल ही मेरी ज़िंदगी का अहम मकसद है। मैं तो ज़िंदा भी तुम्हारी ही वजह से हूँ। इतना कहकर वो इमारत की जानब उड़ गया। उस वफादार बेज़ुबान की लाश यूं ही पानी में भीगती रही थी। ये इमारत गैर आबाद और वीरान इलाके में मौजूद थी। उस इमारत का नाम नादर महल था। बहुत से लोग उसको खंडरोला के नाम से भी जानते थे। ये एक बहुत पुरानी इमारत थी जिसके बाद हिस्से टूटकर खंडर में तब्दील हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सालम हिस्सों तक पहुंचने के लिए उसके सदर दरवाजे का कफल खोलना ज़रूरी था। इमारत बरसों से खाली पड़ी थी। ऐसा ना था कि उसके मालकान ने उसको फ़रोख्त करने की कोशिश ना की हो, लेकिन हमेशा की तरह ख़रीदार या तो डर कर भाग जाता या फिर मारा जाता। उसकी वजह शोहरत उसका असीबी होना था। दर्जनों वाक़यात इस इमारत से मंसूब थे, मगर एक वाक़े ने ज़्यादा ही शोहरत पाई थी। करीब कोई 5 साल पहले उसके मालकान ने इस इमारत को गिराकर एक प्लाज़ा बनाने का ऐलान किया। इसलिए इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने का ऐलान किया गया। चुनाचा इमारत को गिराने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले उसके साल खुर्दा जंग आलूद सदर दरवाजे पर ज़रबे लगाई गई, लेकिन दरवाज़ा था कि टूटने का नाम ही ना लेता था। चुनाचा मज़दूरों को उसके 20-22 फुट चौड़ी दीवार फांद कर अंदर भेजा गया ताकि अंदर से उस दरवाजे को तोड़ा जा सके। जैसे ही मज़दूर अंदर दाखिल हुए, चंद लम्हों के बाद वो चिल्लाते हुए बाहर निकले थे। उन्होंने सहन वाली दीवार के सामने एक गैर मर्ई मखलूक को देखा था। ना जाने वो औरत थी या क्या था। उसके बाद मज़दूर डर गए थे और उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया था। अचानक फिर लोगों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा था। सदर दरवाजे की दीवारों में दरार पड़ चुकी थी और गाढ़ा गाढ़ा खून उन दीवारों से रस रहा था। फिर एक ख़तरनाक किस्म के कहके ने मज़दूरों और ठेकेदारों को सर पर पैर रखकर भागने पर मजबूर कर दिया था। फिर जितनी दफ़ा ये इमारत फ़रोख्त करने की कोशिश की गई, या खरीदार भाग जाता या मारा जाता। फिर थक हार कर उन्होंने ये कोशिश तर्क कर दी थी। दिन के 12 या 12:30 का अमल होगा। सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी इस कदर शदीद थी कि इंसान तो इंसान, सड़कों पर भौंकने वाले कुत्ते भी उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सके थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था। ऑफिस का एसी ख़राब था। छत पर लगे पंखे से निकलने वाली गर्म हवा ने पूरे कमरे को जहन्नम का नमूना बना दिया था। वो बार बार अपने माथे पर आया हुआ पसीना पूंझता और फिर दोबारा फ़ाइल में मसरूफ़ हो जाता, और उसके चेहरे पर शदीद किस्म की झंझलाहट के आसार नुमायाँ थे। तंग आकर उसने बेल का बटन दबाया और कुछ ही देर के बाद एक पुलिस कांस्टेबल आ खड़ा हुआ और उसने आते ही एक ज़ोरदार सैल्यूट झाड़ा। जी सर जी, उसने खुशामदाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसने नहायत गुस्से भरी नज़रों से उसको देखा और फिर सख्त लहजे में बोला, वो एसी वाला तेरा प्यो है जो उसको बुलाकर नहीं लाया। उसके चढ़े हुए तेवर देखकर वो लिहाजा से बोला, हजूर मैं गया था मगर उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो शाम को आएगा। वो एक काम चोर, कोई तो ढंग से काम कर लिया कर, जा मेरे लिए लस्सी लेकर आ। वो गुस्से से बोला। हजूर पैसे, कांस्टेबल ने घगयाते हुए कहा। ओए शर्म कर, क्यों पुलिस को बदनाम करता है? पैसे देकर जा, मेरा नाम ले, कहना इंस्पेक्टर साहब ने मंगवाई है। लस्सी के पहले ही घोंट ने उसको नहायत फरत का एहसास बख्शा था। लस्सी पीकर वो दोबारा फाइल में लग गया। कुछ ही देर गुजरी होगी कि एक दूसरा कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। कांस्टेबल को अंदर आता देखकर उसके माथे पर त्योड़ियां चढ़ गईं। हाँ गफूर बोलो, उसका अंदाज बता रहा था कि उसको गफूर की आमद अच्छी नहीं लगी। गफूर ने फौरन ही साहब के चढ़ते हुए तेवर भांप लिए और खुशामदाना अंदाज में मुस्कुराकर बोला, सर जी, कल जिस बंदे को हमने डकैती में उठाया था उसके लवाहकीन मिलने आए हैं आपसे। लगता है कि कोई मुकमका करने के चक्कर में हैं।
मुकमका की बात सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। अच्छा तो बुला ले, उसमें एक बंदे को भेज देना, उसने मैनी खेत अंदाज में कहा। गफूर जाने लगा तो उसने पीछे से आवाज़ दी, ओए इसके अलावा और कोई मुलाकात तो नहीं? नहीं जनाब, गफूर ने खुशामदाना लहजे में कहा और बाहर निकल गया। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अंदर दुबला पतला सा एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो शख्स इजाज़त लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। वो चंद लम्हे बैठा रहा। इंस्पेक्टर उसकी हरकत व सकनात को बड़े गौर से देख रहा था। उसने जेब से रुमाल निकाला और माथे पर आया हुआ पसीना पूंझने के बाद बोला, हजूर मेरा नाम करीम बख्श है। जिस लड़के को कल रात आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका बाप हूँ। वो बेगुनाह है जनाब, करीम बख्श गुलूगीर लहजे में बोला। मोहतरम, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। हर बाप की नज़र में उसका बेटा बेगुनाह होता है। वैसे भी वो असले और डकैती के माल के साथ गिरफ्तार हुआ है। वो कॉलेज का स्टूडेंट है सर। अगर सज़ा हो गई तो उसका मुस्तकबल बर्बाद हो जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, नामालूम कैसे माल के साथ पकड़ा गया। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वो लहजे से बोला। क्या करूं? वो मैंने खेज लहजे में बोला। मैं क्या बताऊं, आप समझदार हैं, करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा। वो चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर बोला, बुजुर्गवार, बच्चे के मुस्तकबल का सवाल है, इसलिए 1 लाख मुनासिब हैं। करीम बख्श चंद लम्हात तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर असबात में सर हिला दिया। उसका पूरा नाम इंस्पेक्टर आसफ दरगोश था। माँ बाप का इंतकाल बचपन में हो चुका था और उसकी परवरिश करने वाले उसके दादा थे जो एक शायर थे। दरगोश उनका तखल्लुस था और आसफ को यह तखल्लुस इस कदर पसंद था कि उसने अपने नाम के साथ अपने बाप के नाम की जगह तखल्लुस लगाना ही पसंद किया था। कानून की बालादस्ती का उसको हरगिज़ शौक ना था, ना ही वो जुर्म को ख़त्म कर देने का मुतमनी था। पुलिस में जॉब करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना था और उसकी वजह उसका बचपन से लेकर जवानी तक हर ज़रूरत को महदूद करना और उसका गला घोंट देना था। हर गैर कानूनी काम जिसमें पैसा मिलने का चांस हो दरगोश हाथ से जाने नहीं देता था और उस आदमी के रुखसत हो जाने के बाद वो दरगोश दोबारा फाइल की वर्कगर्दानी में मसरूफ़ हो गया। नादर महल की असीबी शोहरत अब भी बरकरार थी। अब तो वहाँ लोगों ने आना जाना तर्क कर दिया था। एक रोज़ दोपहर के वक़्त नादर महल के सदर दरवाजे के पास एक हाई रूफ आकर रुकी। हाई रूफ में 4 लोग सवार थे। उन चारों पर बेहतरीन किस्म के सूट थे, लेकिन इंसान के जिस्म पर मौजूद बेहतरीन सूट कभी भी उसके शरीफ होने की दलील नहीं। ये चारों भी शरीफ बदमाश थे और उनमें सबसे पहले उतरने वाले शख्स का नाम नागर था। नाम तो उसका कुछ और था, मगर जुर्म की दुनिया में उसको नागर दादा के नाम से याद किया जाता था। ये इन दिनों की बात है जब नागर की उम्र 10 बरस थी। एक रोटी चोरी करने के जुर्म में लोगों ने उसको इतना मारा कि उसके माथे पर चोट का एक गहरा निशान बन गया, जो कि बाद में उसकी मुस्तकिल शनाख्ती अलामत बन गया। उसके बाद नागर दादा ने सबक सीख लिया कि जिंदा रहने के लिए दूसरों का निवाला छीनकर अपना पेट भरना ज़रूरी है। और उसके बाद छोटी मोटी चोरियों से एक दिन वो बड़ा दादा बन गया था। जेल की सैर के बाद उसके जुर्म को रजिस्ट्रेशन भी मिल गई थी। खैर, नागर अब एक बहुत बड़ा दादा था। वो चारों नादर महल के सदर दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। एक ने जेब से तारनुमा एक चीज़ निकाली और दरवाजे के कफल पर झुक गया। चंद ही लम्हों के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ जंग आलूद ताला खुल गया था। सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब वो एक लंबी सी नीम तारीख राहदारी में थे, जो कि चमगादड़ों और अबाबीलों की बदबू से गूंज रही थी। पूरे शहर में जार झंकार और गंदगी के ढेर मौजूद थे। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे साल हा साल यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा हो। वो चारों वहशतज़दा नजर आने लगे थे। अचानक उनमें से एक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो कि खुला हुआ था, और उसमें से नहायत ही ठंडी हवाओं के झोंके आते महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे
किसी ने उस एसी चला दिया हो। नागर ने अपने साथियों की तरफ देखा और सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, चौंक कर एक दूसरे को हैरतज़दा नज़रों से देखने लगे। जो कुछ अभी उन्हें नजर आया था वो उनकी तवक्कात के बरखिलाफ था। कमरे की साफ सुथरी फिजा ने उनको मुतहय्यर कर दिया। वो तो समझ रहे थे कि कमरा पूरे महल की तरह गर्दो गुबार और मिट्टी से अटा हुआ होगा, मगर कमरा नहायत साफ सुथरा और ठंडा था। कमरे के वस्त में एक चमकदार सी मेज़ बिछी हुई थी। मेज़ पर जो चीज़ मौजूद थी उसको देखकर उनके तीनों के चेहरों पर खौफ नजर आने लगा था, जबकि नागर के होंठों पर हकारत भरी मुस्कुराहट थी, जैसे नजर आने वाली चीज़ उसके लिए बेवकूफ़ हो और हकीर हो। वो एक खोपड़ी थी और जिसको देखकर उन तीनों के चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। सफ़ेद दांतों की चमकदार कितार बड़ी ही भयानक लग रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ खोपड़ी से बरामद हुई थी, जैसे कि भाप से चलने वाले इंजन ने स्टीम छोड़ी हो, और उसके बाद उस पुरअसरार खोपड़ी ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वो खोपड़ी बड़ी ही तेज़ी से दायरे में घूम रही थी। ये मंजर देखकर उन तीनों के हलक से चीखें निकली और वो गिरते पड़ते भाग निकले। लेकिन नागर अपनी जगह खड़ा था। वो बड़ी ही दिलचस्पी से खोपड़ी को घूमते हुए देख रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा था। दरगोश को गश्त से वापस आए आधा ही घंटा हुआ था कि कांस्टेबल शीदे, जिसका नाम शेर अली था लेकिन उसको थाने में प्यार से शीदा कहा जाता था, उसने एक ज़बरदस्त किस्म का सैल्यूट झाड़ दिया। दरगोश ने तेवरी चढ़ाकर उसकी जनब देखा और पूछा, बोलो क्या बात है? हजूर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है वो? दरगोश ने सीट बैठते हुए पूछा। जी, वो अपना नाम मुराद बताता है और बहुत देर से बैठा है। शीदे ने दांत निकालते हुए कहा। मिलने की वजह? ये तो मालूम नहीं, वो कहता है कि आपसे कोई ज़ाती काम है। उसकी बात सुनकर दरगोश सोच में पड़ गया और चंद लम्हों के बाद उसने संजीदा अंदाज में कहा, ठीक है, उसकी जामा तलाशी लेकर अंदर भेज दो। जी हजूर। शीदा फुर्ती से घूम गया। अब उसका रुख रिपोर्टिंग रूम की तरफ था, जहां इस वक्त हेड मुहर्रर के पास लोग मौजूद थे और वो अपने नरम गरम अंदाज में FIR लिखने में मसरूफ था। शीदे ने हेड मुहर्रर पर उचपटी सी नज़र डाली और आगे बढ़ गया। यहाँ एक खाली बेंच पर मुराद नामी आदमी खामोश बैठा हुआ था और उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और एक मोटी सी शाल जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। उसके जिस्म पर शाल देखकर शीदे ने हैरत से सोचा कि इस कदर गर्मी में चादर, ओए ये चादर उतार कर यहाँ रख दो। शीदे ने अपने मखसूस पुलिस वाले अंदाज में कहा। क्यों? मुराद नामी आदमी हैरत से बोला। मुराद जिसामत में कोई 6 फुट का दुबला पतला आदमी था और उसकी रंगत सांवली और चेहरे पर घनी मूंछें काफ़ी जच रही थी। ओए, जितना कहा है उतना कर। साहब ने बुलाया, तेरी तलाशी के बगैर तो तुम नहीं मिल सकता उनसे। और शीदे ने गुस्से से कहा, मगर चादर क्यों उतारूं? मुराद अब भी हैरत ज़दा था। ओए, तू शराफत की बात समझता नहीं है। चादर उतार और तलाशी दे बस। और उसकी बात सुनकर मुराद ने बादल नाखवास्ता चादर उतारी और बेंच पर रख दी। मुझे बुखार है और सर्दी लग रही है, इसलिए चादर ओढ़ी हुई थी। वापस आकर दोबारा ओढ़ लेना, शीदे ने हमदर्दी से कहा। और उसने जल्दी जल्दी उसकी तलाशी ली और उसको साथ लेकर वरगोश के कमरे की तरफ बढ़ गया। जल्द ही मुराद इंस्पेक्टर और वरगोश के सामने मौजूद था। चंद लम्हों तक वो वरगोश उसका जायजा लेता और फिर पुरतफक्कर अंदाज में उसको देखते हुए बोला, बैठो, कौन हो तुम? वो एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर यूं लगा कि जैसे वो अपने दिमाग में अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा कर रहा हो और इसी दौरान वरगोश उसके चेहरे को यूं देख रहा था जैसे पोस्टमार्टम कर रहा हो। बोलो, खामोश क्यों हो? वरगोश ने सख्त लहजे में कहा। बात यह है जनाब कि मैं आपके लिए बड़े सरकार का पैगाम लेकर आया हूँ। उसने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। कौन बड़े सरकार, जिनका पैगाम तुम लेकर आए हो? वो हमारे गांव के सरदार हैं जनाब, मुराद ने बताया, और उनके एक अहम आदमी को अगवा कर लिया गया है।
इस सिलसिले में आपकी मदद चाहते हैं। कौन सा गांव है तुम्हारा? देवनगर। सर हिलाकर जवाब दिया गया। अगर बंदा अगवा हुआ है तो हेड मुहर्रर के पास रपट लिखवाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? रपट तो लिखवाई जा चुकी है जनाब, मगर इन चीज़ों से क्या फ़ायदा जनाब? बड़े सरकार आपसे ज़ाती तौर पर मदद के ख्वाह हैं। मुराद मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर बोला। उसकी मुस्कुराहट का मतलब वरगोश फौरन ही समझ गया था। ज़ाती तौर पर मदद का मतलब एक बड़ी रिश्वत ही हो सकता था। बड़े सरकार ने आपको रात के खाने की दावत दी है, मुराद ने मुस्कुराकर कहा। दावत? जी हाँ जनाब। अपने बड़े सरकार को बोलो कि यहाँ आ जाए, वरगोश ने अफसराना अंदाज में कहा। जनाब, बड़े सरकार ने कहा है कि आपका ही फायदा है, खाना तो मिलेगा ही और साथ में खीर भी। मुराद का लहजा मजीद धीमा हो गया। खीर की बात सुनकर वरगोश की आंखों में चमक दौड़ गई और उस चमक को मुराद ने अच्छी तरह से महसूस कर लिया और मुस्कुराने लगा। कदरे तवक्कुफ के बाद वो दोबारा गोया हुआ। जनाब, जब मिलेंगे और बहुत सी बातें सामने आएंगी, बस उन्होंने इतना सा पैगाम देकर भेजा है। मुराद की बात सुनकर वरगोश सोच में पड़ गया था। बड़े सरकार का यूं बुलाना बेमकसद तो हो नहीं सकता। ज़रूर बड़े सरकार के हाथ किसी जुर्म में मुलव्वस हैं। चंद लम्हे तक वो सोचने के बाद बोला, ये देवनगर किस तरफ है? वो एक अजीब सी आवाज़ थी और जिसको सुनकर नागर चौंक पड़ा था। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मक्खियों की बिनबनाहट हो। नागर ने चौंक कर उस नाचती हुई खोपड़ी को देखा और बड़ी ही बेपरवाही से गर्दन झटक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे उसको पकड़ लिया था और उसने खोपड़ी के निचले हिस्से को अपनी तरफ कर लिया था। 3 छोटे छोटे पहिए बड़ी ही तेजी से गर्दिश कर रहे थे। मक्खियों की बिनबनाहट उसी से खारिज हो रही थी। नागर के लबों पर हकारत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। थोड़ी ही देर के बाद पहियों की गर्दिश रुक गई। नागर ने खोपड़ी को उसी जगह छोड़ा और पूरे महल में वो चकराता फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद नागर जब दोबारा उसी जगह पहुंचा तो ना वहां खोपड़ी थी और ना ही वो मेज। नागर ने लापरवाही से गर्दन झटकी और फिर महल से बाहर आ गया। कार में उसके 3 साथी मौजूद थे और जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह महल भूतिया है, एक ने कहा। तो नागर ने उसको गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हम वहां करने क्या गए थे? दूसरा साथी बोला। कुछ नहीं, बस एक फ़ोन आया था जिसकी वजह से मैं दौड़ा चला आया। एक फ़ोन पर तीसरे साथी के लहजे में हैरत थी। मैं तो अच्छे पैसों की उम्मीद पर वहां गया था। तुम लोग जानते हो पुलिस की कितनी सख्त चेकिंग है। पकड़ धकड़ के इस ज़माने में उस फ़ोन से समझा कि शायद बड़ी रकम का आसरा हो जाए। एक साथी जो जवाब देना ही चाहता था कि नागर का मोबाइल बजने लगा। नागर ने चौंक कर फ़ोन उठा लिया। ये वही नंबर था जिस पर पहले भी उसको कॉल आई थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ नागर, और तुम अपने दूसरे साथियों की तरह डरपोक नहीं हो। मुझे तुम पसंद आए। मेरे इस काम के लिए तुमसे बेहतर आदमी कोई हो नहीं सकता। नागर को सुनाई देने वाली आवाज़ निहायत कदरे बैठी हुई थी। आवाज़ सुनकर नागर के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई और उसने अपने जिस्म में कपकपी दौड़ती हुई वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। उसको यूं लगा था कि जैसे वीराने में कोई भेड़िया गुर्राया हो। मुझे क्या करना होगा? नागर के सहमे हुए लहजे को देखकर उसके साथी चौंक गए। उन्होंने उसके लहजे में खौफ के अंसर को साफ महसूस किया था। कुछ नहीं, बस आराम करो और मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। और हाँ, 20,000 की रकम तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। देवनगर एक छोटा सा मगर इंतहाई खूबसूरत गांव था। चारों तरफ कुदरती हरियाली से भरपूर ये गांव अपने अंदर एक अलग ही कशिश लिए हुए था। वरगोश जब 4 घंटे की तवीली मसाफत के बाद व्यूनगर में दाखिल हुआ तो उसके साथ शीदा भी था। शीदा बड़ा ही पुरसकून अंदाज में जीप चला रहा था। ये जीप वरगोश की अपनी थी। मुराद ने तो कहा था कि वेवनगर में हमको लेने आएगा। वरगोश ने शीदे से कहा। हजूर वो सामने देखें, शीदे ने मुस्कुराते हुए कहा और जीप रोक दी। वरगोश ने सामने देखा तो दरख्तों के झुंड के दरमियान मुराद खड़ा दिखाई दिया था और उसने आज भी वही चादर अपने जिस्म पर ओढ़ रखी थी। जीप रुकते देखकर मुराद तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। जहां जीप रुकी थी वो इलाका ज्यादा गुंजान आबाद ना था।
درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک سڑک اندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضور، یہ خاکسار گھنٹے بھر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کیوں؟ ورگوش نے چونک کر پوچھا۔ بڑے سرکار کا حکم تھا نا، آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ کی راہ تو دیکھنی ہے، کہاں چلنا ہے۔ مراد نے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ جیپ میں سوار ہو گئے اور جیپ آگے بڑھ گئی تھی۔ قدرتی نظارے، کھیت کلیان ورگوش کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد جیپ کچے پکے مکانوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ایک لال رنگ کی عمارت کے سامنے رک گئی۔ لال رنگ کی عمارت طرز تعمیر کے حساب سے کافی پرانی تھی، جس کو دیکھ کر ورگوش کو مغل دور کی عمارتیں یاد آ گئیں۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ شیدے نے سرگوشی کی۔ خطرہ کیسا؟ دعوت ہے، کھانا کھاؤ اور نکلو۔ ورگوش کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ تینوں دروازے پر پہنچے اور دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ جلدی ہی وہ مراد کے اشارے پر اس کے نقشے قدم پر چلتے رہے تھے۔ یہ کھلا صحن تھا اور جس کے اطراف میں درختوں کی بہتاب تھی۔ ورگوش نے اپنی تیز آنکھوں سے اس کنویں کو بھی دیکھ لیا تھا، جس کے گرد کچھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ڈول سے پانی نکال رہا تھا۔ یہ سارے مناظر ورگوش کو کئی سال پیچھے لے گئے تھے۔ دیہی زندگی میں آج بھی یہ تو سب تو ہوتا ہی ہے۔ ورگوش کو کچھ لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیے اور ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ سب سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ حویلی نما یہ مکان کافی بڑا تھا۔ مراد ان کو لے کر ایک خالی کمرے میں چلا آیا، جہاں کرینے سے فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور کونوں پر گاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، میں بڑے سرکار کو خبر کرتا ہوں، مراد نے ادب سے کہا اور باہر نکل گیا۔ شیدہ پورے کمرے کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ورگوش نے اس کی آنکھوں میں پرجوش کیفیت دیکھی۔ اوئے، کیا بات ہے، تم ہر چیز کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہے ہو؟ حضور، یہ تو مجرے کا سما ہے۔ شیر علی، تم بہت شوقین لگتے ہو ان چیزوں کے۔ ورگوش شیدہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اس کے یوں کر گھور کر دیکھنے سے شیدہ گڑبڑا گیا۔ نہیں حضور، بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو تھانے دار صاحب تھے، ان کے ساتھ بلبل ہزار داستان کے بہت چھاپے مارے ہیں۔ بلبل ہزار داستان؟ ورگوش چونک گیا۔ سر جی، طوائفوں کے کوٹھوں کو بلبل ہزار داستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بلبل کی الگ کہانی ہوتی ہے، اس لیے۔ شیدے نے بھرپور انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ لگتا ہے کہ تمہاری ان بلبلوں سے بہت واقفیت ہے۔ اس کی بات سن کر شیدہ کھسانی سی ہنس کر بولا، حضور، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کسی وقت ان بلبلوں کا چہکنا بھی سنیں گے۔ ورگوش مسکرایا۔ بالکل جناب، اب تو یہ کاروبار اس لاک ڈاؤن میں اور منافع بخش ہو گیا ہے۔ گڈ، ورگوش کچھ سوچ کر بولا، اور وہاں بھی چلیں گے، ذرا صبر کرو۔ شیدہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کمرے میں اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر ورگوش روب میں مبتلا ہو گیا۔ آنے والا شخص ایک بوڑھا مگر باروب انسان تھا، جس کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ سر کے بال زلفوں کی طرح کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھا شخص نہایت کمزور اور مدکوک تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں اس کی آنکھیں ہی تھی، جن کو دیکھ کر سامنے والا بندہ از خود روب میں مبتلا ہو جاتا، اور اس کو دیکھ کر ورگوش اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا تھا۔ بیٹھو بیٹھو بابا، ہمیں یوں شرمندہ نہ کرو۔ اور اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح پر روب تھی۔ اس کی بات پر ورگوش فوراً ہی بیٹھ گیا تھا، اور وہ ورگوش کی جنم دیکھ کر پھر گویا ہوا۔ ہمیں بڑے سرکار کہتے ہیں۔ نام تو ماں باپ نے کچھ اور رکھا تھا، لیکن لوگ محبت اور احترام میں بڑے سرکار کہتے ہیں۔ ورگوش نے کوئی جواب نہ دیا، اور بس وہ تو اس کی شخصیت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگا کہ بڑے سرکار اندر سے کچھ اور ہیں۔ مراد کسی زر خرید غلام کی طرح دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ مراد، جاؤ بابا، معزز مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ مراد کسی جن کی طرح ارم چھو ہو گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد بڑے سرکار نے بڑی ہی گہری نظروں سے ورگوش کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، بابا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم ہمارے بلانے پر تشریف لائے، اس لیے ہم خود تمہارا استقبال کرنے آ گئے۔ بلانے کی کوئی خاص وجہ؟
ऐसी कोई खास वजह नहीं, हम तो बस आपके न्याज चाहते थे, बाकी बातें तो खाने के बाद होती ही रहेंगी। वरगोश बेइतनाई से कंधे उचकाते हुए बोला, जैसे आपकी मर्जी। वही पुरइसरार आवाज नागर को फिर सुनाई दी थी, जिसको सुनकर उसको अपने जिस्म में कपकपी दौड़ती हुई महसूस होती। ये उस रोज की बात है जब 20,000 की रकम उसको मिले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसने इस रकम में से 10,000 रुपये अपने साथियों में तकसीम कर दिए और उसके बाद बाकी रकम खत्म होने में उसको 2 दिन भी ना लगे थे। अचानक उसको वही फोन मौसूल हुआ था और जब वो एक बार में शराब के नशे में धुत पड़ा था, फोन पर नंबर देखते ही उसका नशा उड़न-छू हो गया था और उस आवाज ने जो कुछ कहा उसको सुनकर उसके होश खता हो गए। ये बहुत खतरे वाला काम है। काम खतरे वाला जरूर है, मगर इसका नाम भी बहुत तगड़ा है। उस ज्वेलरी शॉप में कम से कम 2 करोड़ रुपए के हीरे मौजूद हैं, जिसको चुराने के बाद तुम चारों को 10 लाख मिलेगा और वो रकम तुम पूरा साल बैठकर खा सकते हो। 10 लाख का सुनकर नागर के मुंह में पानी सा आ गया था और फिर उसने हामी भरी। 10 लाख की रकम कुछ मामूली ना थी। उस आवाज ने यह भी कहा था कि जो भी खतरा होगा वो खुद निमट लेगा, तुमको जाकर बस लूटना है।